Great. So, just a minor correction. My name is Munaza, and I'm so happy to be here. I think excellent initiative by PSTD for coming up with DIPCON, expanding it beyond just gender empowerment and bringing in the fresh blood, Gen Z, which is the future. We in the corporate world are so used to interacting with people who are like-minded, but having that opportunity to come in and have that kind of interaction with the youngsters, I think gives us a lot of energy and a lot of learning experience. So today, when I talk about career, I think this is one moment for me which I think कहते हैं ना life comes full circle. So roughly 11 and a half years back, I was one of you, sitting in sessions, maybe being somebody who always thought that, wow, I would want to be a speaker someday. Yeah. But being in that frame of mind where I did not have the confidence to even ask a question myself. So from there onwards, I think if I've gotten where I am, I give a lot of credit to good mentors and good people that I've come across, good leaders that I've come across in my life. And for me personally, I feel very happy and passionate about this cause of interacting with the students and really sharing some less generic tips with you guys in terms of how you can grow in your careers. Whether it's a standard corporate career that you want to pursue or you want to move towards maybe entrepreneurship. In both scenarios, I think what me and my team we've together put for you guys may help you. हेलो अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हमारे पास करियर को डिफ़ाइन किया गया, मेरे लिहाज से जो करियर है वो एज अ कॉन्शियसनेस है। जैसे हर फ़र्द इस दुनिया में आता है तो उसके पास कोई एक मकसद होता है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक की, जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, उसका भी एक करियर रखा गया और उसका भी एक एम था, एक मकसद था, एक गोल था। तो यहाँ पे अगर ऐसे हमारे पास हज़ार मिसाल हैं, जिस तरह से हम कार्ल मार्क्स की बात करें या फ्रेडरिक नीत्शे की बात करें या जितने भी फ़िलोसफ़र्स की बात करें या जितने भी हमारे असतिज़ा किराम मौजूद हैं, उनका एक करियर होता है। करियर ये होता है कि आप एक किसी भी अपनी फील्ड में जो आप ख़ुद को एक एज अ सर्व कर देते हैं, आप उसमें एज अ महारत या स्किल्स हासिल कर लेते हैं, जिस पे आप पूरी लाइफ गुजारते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। I think the purpose of asking this question to the wider audience was to basically establish this fact कि career एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम रोज़ दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा सुनते होंगे, लेकिन उसकी अगर definition पूछी जाए या पूछा जाए किसी से कि आपके लिए career क्या है, तो कितनी different किस्म की understanding exist करती है for everybody, right? So, for me and for the audience, I just want to say that whatever I'm sharing today is based on my experience, based on my understanding of how I define a career, right? This is something that has worked for me, and that is why I want to share my journey with you guys and my opinions and my experiences. And I would really love it if we can keep the last 5 minutes for a question and answer section, because interaction with you guys is what I'm really looking for today. So without any further ado, I think starting off with this के जब से I think हमने स्कूल ज्वाइन किया था, क्या हम सबको एक स्क्रिप्ट नहीं मिली हुई है? वो स्क्रिप्ट क्या है? वो यही है कि आप स्टडी हार्ड करें, पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छे ग्रेड्स लाएं, अच्छी नौकरी करें, नौकरी में आपके हर साल आपने मेहनत करनी है और प्रमोट होते रहना है। क्या ये स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं मिलती? हम सबको
बचपन से यही बताया जाता है कि ये आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे करियर में, राइट? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो जब आप चाहते हैं कि वो आपका साथ दे तो अक्सर वो साथ छोड़ देती है। बट आपको जो एक चीज़ आई थिंक किसी ने नहीं बताई थी वो ये कि आपकी करियर में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मिसिंग होते हैं। आपको हार्ड वर्क की जहाँ तक बात आती है, हार्ड वर्क इज़ समथिंग विच इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, but there is always more. Your success in your career is something which is not entitled, it is not guaranteed. You have to really earn it. अर्न करने के लिए मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है, लेकिन मेहनत सब कुछ नहीं है। जो करियर की हम बात कर रहे थे अभी तक कि करियर क्या है, करियर मेरे हिसाब से आपका जॉब टाइटल नहीं है, आपकी लिंक्डइन हेडलाइन नहीं है। आजकल हम सब लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हैं। वी थिंक दैट लिंक्डइन इज गोइंग टू गेट अस करियर सक्सेस। Posting on LinkedIn, making sure that we all sound fancy on LinkedIn, I think that is what we ascribe as success in career, right? But it is beyond that. Salary पे अक्सर हमारे यहाँ बहुत फोकस किया जाता है हमारे कल्चर में कि आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप करियर में अच्छा कर रहे हैं, बट आपका करियर इस सबसे ज़्यादा है। इट गोज़ बियॉन्ड दैट। आपका करियर बेसिकली एक रिटर्न है जो कंपाउंडिंग बेसिस पे आपको मिल रहा होता है। एंड आपके करियर में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये कि आपने रोल्स कौन से लिए हैं, आप किस एक्सपीरियंसेस से किस एक्सपोजर से गुजर रहे हैं, आपने उन सारे रोल्स को करते हुए क्या स्किल्स बिल्ड की हैं, वॉट ऑल हैव यू अक्यूमुलेटेड, क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आप गैदर कर पाए हैं अपनी करियर में, क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या आपकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। अगर आप वो स्किल्स सीख रहे हैं तो आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। ये वो इनपुट है जो आपको अक्यूमुलेट करना होता है टू बी सक्सेसफुल अहेड इन योर ओवरऑल करियर। एक चीज़ जिसको हम जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें कोई नहीं बताता, कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं बताती दैट व्हेन यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द रिलेशनशिप्स, द वर्किंग रिलेशनशिप्स दैट यू फॉर्म आर गोइंग टू रियली हेल्प यू एंड टेक यू फॉरवर्ड विद दैट। And at the end of the day, the reputation that you create for yourself, लोग आपके बारे में जब आपसे इंटरैक्ट करते हैं तो उनका क्या थॉट डेवलप होता है आपके बारे में, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्या रेप्यूटेशन है, वो एक ज़रिया होती है टू टेक यू फॉरवर्ड इन योर करियर। ये बातें आपको कोई नॉर्मली शायद उस तरह नहीं बताएगा। क्वेश्चन ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन इज व्हाट एम आई कंपाउंडिंग, व्हाट एम आई अक्यूमुलेटिंग, व्हाट एम आई गैदरिंग। दैट इज समथिंग विच वुड रियली हेल्प एवरीबडी गेट अहेड इन लाइफ। अक्सर कॉर्पोरेट्स में हम बहुत दफ़ा एक लफ्ज़ सुनते हैं कि परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर, परफॉर्मेंस बेस्ड डिफरेंशिएशन, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, वी थिंक कि वी आर परफॉर्मिंग, हम तो सब कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग प्रोमोटेड। तो परफॉर्मेंस इज़ नॉट इज इक्वल टू प्रमोशन या तरक्की जिसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस है आपके आज के करंट रोल के हिसाब से, विच इज़ ग्रेट, जिसकी बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन प्रमोशन के लिए आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि मैं एक बड़ा रोल करने का पोटेंशियल रखता हूँ या रखती हूँ। उसके बगैर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी टू टेक दैट बेट ऑन यू। सो परफॉर्मेंस अलोन इज़ नॉट समथिंग विच विल गेट यू अहेड। बट डज दिस मीन दैट वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस बिल्कुल हमें फोकस इसलिए करनी है क्योंकि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है और इसकी बेसिस पे आप आज के रोल में परफॉर्म करेंगे अच्छा तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी। विजिबिलिटी किन लोगों की? विजिबिलिटी टू सीनियर लीडरशिप टीम हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्पॉट दैट टैलेंट इन यू एंड देन ग्रो यू, इन्वेस्ट इन यू।
अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, कोई नया प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई असाइनमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका इनपुट लिया जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास तब आएंगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे. और आपकी रेप्यूटेशन, आपका पर्सनल ब्रांड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू एंटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट thinking about what kind of a personal brand are you creating for yourself. How do people remember you? अगर आपकी बात होती है तो वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? Are they saying that XYZ person is very dependable, I can really give them something and it's fire and forget? Or are they saying that ये तो इसको काम दिया, इससे 2 दफ़ा फॉलो अप करना पड़ेगा तब आएगा? So the kind of personal brand that you create for yourself is very important in terms of getting you that promotion, and to get that promotion you need to perform. That's the minimum standard. Aksar we hear this, that hard work versus smart work mein people always say that smart work is something which should be prioritized. I think of course smart work is important, but no, it's not a either or, it's a and. It's always going to be hard work as the foundation, and then smart work is cherry on top of it. So don't chase promotion, chase the means that will get you that promotion. Because आप वो input gather करें, output खुद ही आता जाएगा. बिकॉज प्रोसेस के नाम पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी कॉर्पोरेट में अवेलेबल होंगी. अक्सर ये होता है दैट आप करियर में क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, लोग सिर्फ एक डायरेक्शन देखते हैं, वो है वर्टिकल. वर्टिकल डायरेक्शन क्या होती है कि आप सिर्फ अपने करियर में बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो कर रहे हैं कि आज when I've entered the corporate, I'm maybe starting off as a management trainee. Then I get confirmed as an assistant manager, and then I'm getting promoted as a deputy manager. But beyond vertical growth, आपको ये भी सोचना होता है कि आप horizontally कैसे grow कर रहे हैं. Horizontal growth का मतलब है कि आज अगर मैं HR में हूँ, तो क्या मुझे HR के अलावा उसके beyond जाके do I need exposure to other functions also? क्या मुझे सप्लाई चेन में काम करना है, क्या मुझे कमर्शियल में काम करना है, सेल्स या मार्केटिंग की तरफ मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए. जितना आप अपना करियर को डाइवर्सिफाई करेंगे, जितना फोकस करेंगे कि आपको कोई एक या दो और एरियाज की एक्सपीरियंस मिले, उतने आपके चांसेस बेहतर होते जाते हैं टू गेट अहेड. अक्सर ये होता है कि इवन विद इन अ फंक्शन people very early on in their career, and particularly students, अगर किसी ने सप्लाई चेन में मेजर्स किया है तो वो उनको लगता है कि हम स्पेशलिस्ट बन गए हैं अभी से सप्लाई चेन के, एंड वी विल ओनली गेट जॉब्स इन सप्लाई चेन और वी विल ग्रो इन सप्लाई चेन. मे बी नॉट, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अदर एरियाज. सो एक्सप्लोरिंग अदर डोमेन्स अर्ली ऑन इन योर करियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप सिर्फ लैडर को स्ट्रेट क्लाइम करेंगे तो उसकी सीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, उसकी लिमिट बहुत जल्दी आ जाती है. अगर आप किसी एक डोमेन में स्पेशलाइज करेंगे तो CEO पोजीशन तक पहुंचना देन बिकम्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. बट इफ यू डाइवर्सिफाई योर एक्सपीरियंस, गेट मल्टीपल स्किल्स अंडर योर बेल्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ग्रोइंग हायर इंक्रीजेस. Most people, as I said, are chasing only vertical growth. But people who succeed are the ones who are doing it both sequentially. कि हाँ promotion चाहिए, but I also want rotations. I also want cross-functional experience. That is very important to grow, and particularly today, in today's day and age. अब जहाँ तक ये बात आ जाती है कि वी वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपीरियंसेस, वी वॉन्ट टू गेट इन टू डिफरेंट फंक्शंस. सो सवाल ये आता है कि क्या यू वॉन्ट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि मैंने सारे फंक्शंस में काम किया हुआ है, और डू यू वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ वन? बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स. यू कैन बी अ स्पेशलिस्ट. हमारे पास HR में ऐसा होता है कि लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, पेरोल के स्पेशलिस्ट होते हैं, या रिवॉर्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, या किसी
टैक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं फाइनेंस में, दे गेट पेड वेरी हाईली, बट उनको प्रोग्रेशन या प्रमोशन उतनी फास्ट नहीं मिलती, वो अपनी सीलिंग पे जल्दी पहुंच जाते हैं. बट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स देम, they want to specialize that is more aligned with their personality, how they view or how they want to take their career forward. That is the choice that they make, versus a lot of other people who maybe actively pursue a more generalist track. Okay, every 2 to 3 years I want different experiences, I want different exposure. उसमें catch ये होता है that you get ahead, आपकी ceiling ऊपर हो जाती है. But उस सीलिंग में पहुंचते पहुंचते क्या आपकी वो डेप्थ होती है, क्या लोग आप पे उस पर्टिकुलर डोमेन पे उस तरह से रिलाई करते हैं? मे बी नॉट. इफ इट्स अ टैक्स इशू, आई वुड ऑलवेज गो फॉर समबडी हु इज अ टैक्स स्पेशलिस्ट. एंड इफ it is something about if it's a leadership role, or if it's a role where I require maybe zooming out, creating a vision, I will go for a generalist. तो 2 तरह के ट्रैक्स एग्जिस्ट करते हैं कि स्पेशलिस्ट आप हो सकते हैं या जनरलिस्ट हो सकते हैं. बट अपने आप को वेरी अर्ली ऑन, जस्ट बिकॉज आपने सिर्फ एक फील्ड में मेजर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी में, स्पेशलिस्ट मत समझें और स्पेशलिस्ट पे मत रुकें. अपनी कुछ इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़रूर करें कि आप क्या, कहाँ तक आपका एम्बिशन है. डू यू गेट बोर्ड ऑफ रूटीन अर्ली? अगर ऐसा है कि आप रूटीन से बोर होते हैं, देन it's a sign that maybe you're inclined naturally more towards a generalist track. आपकी specialization is not a hindrance that way. You should explore more. Versus if you are somebody who is looking for a lot of stability, who's comfortable with routine, then go for a specialist track. There is no one right answer. अब आपके पास यहाँ पे what we've tried to show is that there are specialist tracks and then there are absolute generalist tracks. A lot of people, I was told here, are also towards entrepreneurship. एक entrepreneur जो है उसके पास ऑप्शन ही एक होता है कि वो ब्रॉड नॉलेज में ऑपरेट करता है. दे हैव टू लुक आफ्टर मल्टीपल एरियाज, राइट, बाय डिज़ाइन. आप ही अपने पूरे बिजनेस के बारे में हर एक एस्पेक्ट सोच रहे हैं, रादर देन यू ओनली लुकिंग आफ्टर वन एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट. वर्सेस विद इन कॉर्पोरेट आपको दोनों का एक हेल्दी मिक्स मिलता है. Now, when we talk about how your careers actually progress, अक्सर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि when we talk about a career, it is going to be a very straight line, very smooth sail. We will only go forward in our careers. कोई ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे हम maybe अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, हम थोड़ा सा करियर में स्लो हो गए, प्रमोशन लेट हो गई. लोगों को लगता है अगर ये हो रहा है तो देन वी आर नॉट ग्रोइंग. बट रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. रियल लाइफ में आपका करियर कुछ इस तरह से लगता है. देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू गो थ्रू. You can come across a very good boss who will grow you. You can come across a boss who's maybe slightly difficult. You can come across or be put in a role where your natural skill set is not aligned. But क्या उसका मतलब है कि आप ग्रो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं. क्योंकि आप अगर ग्रो सिर्फ एक सूरत में नहीं करेंगे, वो ये कि अगर आप अपना एक स्लम्प या डाउन पीरियड को कहीं पे ये कंसिडर कर लेंगे कि ये डेड एंड हो गया या यहाँ पे हम रुक गए, वहाँ पे आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली है. बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट अच्छे बुरे फेजेस हर किसी के करियर में आते हैं. किसी की भी आप कोई भी लीडर उठा के देख लें, देयर करियर वॉज नॉट ऑल सक्सेसेस. यूजुअली we only tend to see the good parts. We've not seen the struggles, we've not seen the bad days. तो यकीन माने हर कोई उस बुरे फेज से गुजरता है. That's a fact.
Now, when we talk about indicators, कि क्या वो इंडिकेटर्स हैं जब आप अपने कॉर्पोरेट करियर में एंटर करेंगे, तो वो क्या इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि यू आर डूइंग वेल. अक्सर लोग सैलरी को कहते हैं कि अच्छा मेरी सैलरी एक्स है और किसी की X+5 है तो वो मुझसे बेहतर कर रहा है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. इंटरेस्टिंगली जितने भी हाई पोटेंशियल लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी प्रमोट हो रहे होते हैं अपने करियर्स में, उनकी सैलरी हमेशा कम एंड पे होती है. क्यों? क्योंकि उनको उतने कम इंक्रीमेंट्स लग रहे होते हैं. तो सैलरी इज़ नॉट द राइट इंडिकेटर टू शो प्रोग्रेस और सक्सेस इन योर करियर्स. What really matters is this checklist कि आपको कितनी मूव्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं रोटेशंस की, कितनी दफ़ा आपको कंसिडर किया जा रहा है, आपके टेकर्स कितने हैं, आपका एक्सपोजर है सीनियर लीडरशिप को, आपका मैनेजर आपकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, आप किन मीटिंग्स में बुलाए जाते हैं, आपका ओपिनियन लिया जाता है कि नहीं, आपका थॉट प्रोसेस इम्पॉर्टेंट समझा जाता है कि नहीं. All of this really helps get you ahead in your careers. आपको अक्सर हम ये सुनते हैं आजकल कॉर्पोरेट्स में एंड पर्टिकुलरली विद यंगस्टर्स कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल गुजार लिए, बहुत हो गया, नाउ इट्स द टाइम टू मूव ऑन, नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज, वी नीड टू स्विच. बट क्या आपको वाकई ये ऐसा होना चाहिए कि 2 साल हो गए, बस अब एक चेंज चाहिए, आई नीड टू मूव अहेड, एवरीबडी इज़ मूविंग, वी शुड स्विच? इसका जवाब इतना सिंपल है नहीं. और जो आई एम somebody who did this mistake very early on in my career. मैंने I think I switched when I had completed 2.5 years in my career. Today, it was a mistake, absolutely, because I was young and मुझे था कि सारे लोग मेरे साथ के switch कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत time हो गया, switch करना चाहिए. नहीं, I had everything. जो पिछली slide पे जितनी भी checklist थी, all those indicators were very much there. It was an impulsive move. But again, ये वो चीज़ है जो मुझे किसी ने बताई नहीं, एंड अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं ये शेयर ज़रूर करना चाहती थी आप लोगों के साथ दैट यू नीड टू नॉट listen to everybody else what they are saying. You need to form your own judgment of your own situation and then make that decision to switch. And in terms of framework, मैंने एक अपने आसानी के लिए एक ग्रिड की फॉर्म में आई पुट माई थॉट प्रोसेस इन प्लेस कि आपको वाकई स्विच कब करना चाहिए. अगर आप अपनी कंपनी में ग्रो नहीं कर रहे हैं और आपकी कंपनी भी ग्रो नहीं कर रही, इन द सेंस कि कोई नए बिजनेसेस नहीं आ रहे, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, बिल्कुल स्टैग्नेंट हुई हुई है, देन यू शुड स्विच. बिकॉज वो जब कंपनी ही ग्रो नहीं कर रही तो वो आपको वो मौके नहीं दे सकती आगे ग्रो करने के. That is an indicator that if that is the situation, absolutely switch. But अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है और आप ग्रो नहीं कर रहे, उस वक्त आपका स्विच करना नहीं बनता. उस वक्त you need to focus on your development, enhancing your skills, improving upon yourself. Because कंपनी में वो मौके available हैं for you to grow. For you to be ready to grow with the company, you need to upskill yourself, you need certain skills. And if you are growing in the company, but you see के long term में, और the word being long term, ये नहीं कि आज के इस साल कंपनी ने लॉस किया तो I should switch. नहीं, हमेशा जब भी ग्रोथ की बात होती है वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बात होती है. जिस तरह अच्छा बुरा वक्त हर किसी के करियर में आता है, उसी तरह कंपनीज ऑल्सो ऑपरेट दैट वे. देयर विल बी ईयर्स वेयर companies will be profitable. There are years where they are not profitable, but the decision should not be based on that. The decision should be based on long-term growth prospects. And if those exist in an organization, you should definitely, if those don't exist, then you should definitely look to switch because you will reach your ultimate potential faster. But if the organization is also growing and you're also growing, then you really need to stay put. And this is the mistake that I did.
एंड आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस एवरीबडी कि अगर आप जब अपने इंशाल्लाह करियर्स में जाएंगे, सो इफ़ यू आर डूइंग वेल and if the company is doing well, please don't switch, please stay put. Instead of asking yourself, switch for money, ये बहुत होता है अक्सर कि आज मेरे पास किसी कंपनी ने अप्रोच किया, ऑफ़र की, 20-30% पैसों पे जंप मिली और मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आई शुड स्विच. बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. आप ये शॉर्ट टर्म का फैसला कर रहे हैं. आपने ये आज की बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि क्योंकि थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आई शुड स्विच. बट हो सकता है आप कहीं और जाएं और वो कंपनी आपको वो अपॉर्चुनिटी ना दे पाए. तो ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप उस तरह से जहाँ पे अपनी करंट कंपनी में रह के ग्रो करके प्रमोशन लेके अच्छा इंक्रीमेंट लेके पहुँच सकते थे, आप नहीं पहुँचेंगे. इंस्टेड यू शुड आस्क योर सेल्फ कि क्या आपकी आज की जॉब, आज की अपॉर्चुनिटी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ा रही है कि नहीं, आपको स्किल सेट वो दे रही है जिससे आप ग्रो कर सके, येस और नो. दैट इज़ द क्वेश्चन यू शुड आस्क. एंड फंडामेंटली इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स. हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हर चीज़ एक ट्रेड ऑफ है. ज़िंदगी में हम फैसले हर रोज़ कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके. जो आप चॉइस करेंगे, वट एवर यू पिक, यू हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज. सो अगर आप आज शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पिक करेंगे, this happens with us, right? I'm sure a lot of the youngsters here are also very fitness conscious. Instant gratification, you want to go have a pizza maybe, but वो क्या लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? मे बी नो, बट इट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस देन, श्योर. सो व्हाट डू यू प्रायोरिटाइज? डू यू प्रायोरिटाइज द शॉर्ट टर्म और डू यू प्रायोरिटाइज द लॉन्ग टर्म? दैट इज व्हाट द अल्टीमेट डिसीजन इज. नाउ interestingly, this is a real life case study that I've put together. This is somebody I know, and I just wanted to check with you guys कि आपको क्या लगता है कि इस situation में क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए. There's a finance trainee officer who joined a company, ACCA, in 2019. उनको पहले बजटिंग डिपार्टमेंट से उठा के मूव किया ट्रेजरी फंक्शन में, और वहाँ से उनको 2-3 साल में असिस्टेंट मैनेजर की प्रमोशन मिल गई. ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर है. अब सिचुएशन ये आई कि विद इन देयर एग्जिस्टिंग कंपनी वो एक इमर्जिंग टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ है, दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल. उसकी कंफर्मेशन जो ट्रेनीशिप पीरियड था, वो ट्रेनीशिप पीरियड में उसको कंप्लीट करने से पहले परमानेंट रोल मिल गया. एंड द पर्सन हैज़ एक्सपोजर टू सीनियर लीडरशिप. उसका अपना बॉस हाई पोटेंशियल है. तो ये उसकी करंट सिचुएशन है अपनी कंपनी में. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन में द पर्सन वाज वर्किंग. They get an offer from an MNC, the biggest name. Lateral position है, assistant manager के ही comparable की position है. Salary jump जो है वो बहुत अच्छा मिला है. Should the person switch? If by a show of hands, how many people think कि the person should switch? आप एक ही हैं और आपको बताना पड़ेगा क्यों. चलिए वो एक और किसी ने हाथ उठाया है. If we can have a mic for the gentleman, please. Why do you think he should switch? सैलरी बहुत अच्छी है उनकी. बिल्कुल ठीक है. आई थिंक देयर वाज समबडी पीछे जिन्होंने कहा था कि द पर्सन शुड स्विच. Okay, so basically job is always insecure. तो अगर आपको ज़्यादा पैकेज मिल रहा है तो या you should opt this. Simple. अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअली व्हाट एंडेड अप हैपनिंग. द पर्सन रिजेक्टेड द ऑफर, डिसाइडेड टू स्टे,
And this is what their career looked like when they decided to stay. From assistant manager treasury, they moved to one of the fast growing businesses as finance business partner for commercial. And this is somebody जो एक ACCA track से था. Usually organizations थोड़ा सा slow grow करती हैं ACCA track से, because specialist function आ जाता है वहाँ पे. उसमें the organization saw potential, decided to take that bet, put them in a hardcore business partnering role in finance, and from there they went on to get into market research. And market research के बाद, with 5 to 6 years of experience, the person, because of their potential, grew all the way up to head of supply chain role. One of the youngest leaders in that organization. And एक math, क्योंकि finance background था, the person did that math कि अगर वो उस salary package पे switch करते तो वो कहाँ खड़े होते in that company, because वो track उनका कभी change नहीं होता, track वही रहता, versus where they were today, and they were much better. So whenever you are taking those decisions, it is very important to take other variables into consideration कि आपकी current organization आपको कैसे value कर रही है, कहाँ value कर रही है, क्या आप पे वो bets लेने को तैयार है कि आपको opportunity मिले to grow, yes or no. So that is very important. 5 promotion हुए उस बंदे के 7 साल में. So that says something, right? When we talk about growth, growth is something जो आपकी एक तरह से external होती है कि you are moving ahead, right? कि उसके कुछ extrinsic markers होते हैं कि अच्छा जी title बढ़ रहा है, salary बढ़ रही है, so on so forth. That is growth. But एक और concept होता है evolution का. Evolution is basically internal shifts. आपकी ज़ाती ज़िंदगी में अगर कोई change आ रहा है, अक्सर the mistake that we all end up doing is that we focus on only our careers in isolation. ये ऐसे होता नहीं है. Your career is part of your life. Whatever happens in your life will impact your career. There are so many life transitions that we go through. We go through loss, we go through marriage, we go through having children. ये सोचना कि आपकी life की transitions will not impact you is not really, practical. You need to make sure कि आपका career उस तरह move कर रहा है जिस तरह आपकी life move कर रही है, और आप अपनी expectations को उसके साथ align करके चलें. कभी भी एक गलती जो नहीं करनी चाहिए वो ये कि अगर आपकी ज़िंदगी एवोल्यूशन से गुजर रही है, कोई चेंज हो रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस वक्त करियर को भी डीप स्टेबलाइज करना becomes a problem. That is where you need more stability. That is where you need to focus on career growth as such, right? जहाँ पे भी अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में you're going through something and you decide to switch, ऐसे इंस्टेंस में you will have to get into a new company, you will have to decode that entire environment from scratch, नई relationships building करनी पड़ेगी, expectations को match करना पड़ेगा उधर जाके. That's just too much change for anybody to manage and succeed. So usually what it is said is you should stay put when you're going through a lot of change in your life. At least there should be one anchor which is putting you in your place. And in times where your personal life is in flux, you should focus on your career as that anchor. Now, एक और जो मिस्टेक हम वो करते हैं वो ये होती है कि आपके करियर किसकी ज़िम्मेदारी है. अक्सर हम कॉर्पोरेट्स में क्या कहते हैं कि हमारे मैनेजर को ये करना चाहिए, मैनेजर को हमें मौके देने चाहिए, या एचआर को हमें वो मौके देने चाहिए. नहीं, आपका करियर फंडामेंटली आपकी ज़िम्मेदारी है. यू आर द वन हु नीड्स टू मैनेज योर करियर. आपके पास सपोर्ट सिस्टम में आपका मैनेजर है, एचआर है, बट इफ़ दे आर नॉट सपोर्टिंग यू,
then the responsibility for finding those support systems within the organization lies with you. आप अपना करियर किसी और की वजह से ख़राब नहीं कर सकते. And you will get abundant support in corporates, but you should have that confidence to reach out to people. किसी भी मैनेजर का आपकी लाइफ में 3 रोल्स होते हैं जो उसको the 3 roles that your manager should be focusing on. They should be coaching you. Coaching का मतलब ये है कि they should be focusing on your skill development. They should be mentoring you, giving you direction, helping you figure that direction out for your life, and being your sponsor. Sponsor का मतलब ये है that in meetings where you are being discussed, they put in a good word for you, because that is going to get you those opportunities. अक्सर in our corporate culture, we take sponsorship or sponsors to be bad. We think this is politics. This is not. Sponsors बहुत important है. वो sponsors आप अपने काम से prove करके point of view, it is very important कि आपका manager ये 3 roles play करे. But अगर वो नहीं हो पा रहा, then what you need to do is find other people in the organizations. सबसे जो underrated एक career asset है वो आपका sponsor है. Focus करें कि आपके पास अच्छे sponsors हों आपके career के लिए. And for the youngsters, the only thing that I will advise is कि आपको अपने career को manage करने के लिए there are 6 very easy steps. This is something I do. This is something that I suggest to my team to do. Is कि अपना action plan बनाएं. Action plan starts off with you assessing yourself first. कि आपकी अपने आप से सच बोलें कि आपके क्या areas of development हैं. Where are you at that point? How are you going to grow? How are you going to grow? आपने एक direction अगर अपने career की decide कर ली है, then you need to make sure that you stick to that direction. अपना एक road map बनाएं, उस road map पे you should stick to that. And जो भी आप assignment लें, उसके लिए सब volunteer करना शुरू करें. वो confidence रखें कि you take that up. And अपने action plan में खुद से recalibrate करें कि are you on the right track? If not, then what is it that you need to do differently? Personally, 5 चीज़ें जो मैंने अपने career में follow की हैं, and I'm just sharing that with you, is life has always been about trade-offs. Whatever choice has come my way, I've tried to make the most of it. I've tried to pick the best option available at that point in time, rather than focusing on कि मुझे तो ये भी मिलना चाहिए और वो भी मिलना चाहिए. You have to go with the flow as far as whatever life brings you. खाली wish करने से कुछ नहीं होगा. If you just think कि it should come to you, it probably will not. You have to work hard, you have to earn it. And your path is not their path. One thing that I've done is I've never compared my career trajectory to somebody else. I've always tried to go against the conventional way which people advise me to. I've never fallen into this comparison कि मेरा फलाना colleague, other than the initial mistake that I did of switching, I've always tried to focus on कि what is good for me as a person, knowing my own strengths, my own aspirations, my own areas of development, rather than saying कि उसने ये path लिया तो I should take that path. What works for somebody may not work for you. And don't focus on things which are outside of your circle of influence. Focus on things that you can control or you can influence. Otherwise, you're just wasting your energy thinking about stuff that you really cannot do anything about. And lastly, honestly, karma is something which is really real. Along the way, if you try to harm other people, if you try to pull other people down because of your own insecurities, it'll find its way back to you. So really, whatever you put out in the world is something which will find its way back to you. So बिल्कुल अपनी तरफ से सब कुछ करें, but always also remember that there's a higher power,
and you need that higher power really on your side. So do good to others, and that good will find you back. And with that, I'll just conclude my session. So thank you, everybody. I don't think we have time for Q&A, right? Yeah. So I'll be around in case anybody wants to have any discussion or just want to talk to me. Yeah. So I'll be around. Thank you so much. Good.